یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے. یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے. ہر دور میں ہنستا اور کھلتا یہ علم قرآن کا گلشن ہے. یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے. میں اپنے چینل میں سب سے پہلے بلاگ میں آپ حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج میں اپنے محبوب ادارہ، اپنا مادری علمی مدرسہ عربیہ بدرالعلوم اردو بازار پدم پور کا تفصیلی خاکہ پیش کرنے جا رہا ہوں. میں نے سال 2006 میں اس ادارے کے درجہ دینیات میں داخلہ لے کر فراغت حاصل کی ہے. آج جب میں اس چینل کے ذریعہ اپنے پروگرام اور دینی اداروں اور مجلسوں کا تعارفی خاکہ دنیا کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں پیش کرتا رہوں تو بار بار میرے دل میں ہمارے اس ادارے کا تعارفی خاکہ پیش کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا رہا ہے. اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں اس قدیم ادارے کا تعارفی خاکہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، شاخوں کی لچک، بلبل کی چہک. پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، شاخوں کی لچک، بلبل کی چہک. ہر مست ادا موجود اس میں، ہر سمت آیا ہے اس کی چمک. یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے. مطبخ ہے، یہ دیگچی وغیرہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ گیس ہے. مدرسے میں الحمدللہ انورٹر کا بھی انتظام ہے پاور کٹ کے وقت، تاکہ طلبہ کی تعلیم میں کوئی دقت نہ آئے. اس لیے یہاں پر انورٹر کا بھی انتظام ہے الحمدللہ. آج کا ڈیٹ بھی ہے یہاں پر 16/1/2022. یہ دارالمدرسین ہے، ابھی بند ہے.
حضرت استاد دستگاہ میں تشریف فرما ہے، اس لیے جو ہے دارالمدرسین بند ہے ابھی. یہ ہے طلبہ کے لیے دارالاقامہ ہاسٹل. سارے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی آموختہ کا وقت ہے، وہ لوگ ابھی آموختہ میں یاد کرنے میں مصروف ہیں. ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے مہمان خانہ. جب بھی کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو اس کو یہاں پر اس روم کے اندر اس کو قیام کروایا جاتا ہے. یہ مہمان خانہ ہے. الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے. اس ادارے سے متعلق میرے والد محترم جناب عبد المتین جامی صاحب کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. ایماں کا جلاتا ہے دیا بدر علوم، ایماں کا جلاتا ہے دیا بدر علوم، پھیلاتا ہے ایماں کی ضیا بدر علوم. ایماں کا جلاتا ہے دیا بدر علوم، پھیلاتا ہے ایماں کی ضیا بدر علوم. پیاسا نہیں جاتا ہے یہاں سے کوئی، دیتا ہے ہمیں آب بقا بدر علوم. اب میں سیدھے آپ کو لے چلتا ہوں اس ادارے کے روح رواں حضرت نائب محتمم صاحب کے پاس، جن سے ہم اس ادارے سے متعلق کچھ جانکاری حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں آپ سے چند سوالات ادارے سے متعلق کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ جواب عطا فرمائیں گے. ضرور، شوق سے پوچھیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو میرے معلومات میں ہوگی میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ادارے کا نشأت ثانیہ کب ہوا؟ دیکھیے، اولاً تو یہ ادارہ 1956 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن وہ ایک حجرے کی صورت میں مسجد کے اندر قائم کی گئی. اس کے بعد پھر اسی حجرے کے اندر مسجد کے صحن میں ادارہ چلتا رہا، بہت زمانے تک چلتا رہا. پھر اللہ کی توفیق سے اللہ نے میرے والد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالستار صاحب شمع پدم پور دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں صحت حیات تندرستی عطا فرمائے، ان کے ذریعہ سے اللہ نے اس میدان میں اس جگہ پر لبے روڈ نشاط ثانیہ فرمایا تھا، جو 1978 میں عیسوی میں ہوئی. اس کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ دیکھیے، جب تعمیری سلسلے کا آغاز ہوا اس وقت تو میری پیدائش غالباً ہوئی نہیں تھی. اس کے 1 سال کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی. لیکن جو میں نے اپنے والد محترم سے اور میرے ماما جناب جابر احمد صاحب جو اس وقت آپ کے اڑیسہ لیجسلیٹو اسمبلی بھوبنیشور میں سروس میں ہیں، وہ بڑے خادم تھے میرے والد صاحب کے، دائیں بازو تھے اس وقت میں. ان دونوں کی انتھک کوشش اور پورے محلے والوں کے تعاون سے الحمدللہ ادارہ جو ہے اس وقت بنیاد رکھا گیا تھا. اور میں نے سنا ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب پٹنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت مدرسہ مرکز العلوم سونگڑا میں مدرس تھے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. لیکن اس کی بنیاد حضرت امیر شریعت شیر اڑیسہ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب المعروف بھی کٹکی رحمۃ اللہ علیہ محتمم مرکز العلوم سونگڑا کے دستے مبارک سے رکھا گیا تھا. الحمدللہ. حضرت، میں نے سنا ہے کہ آپ کے فراغت کے بعد ہی جب آپ ادارے میں تشریف لائے تو یہاں کے حالات بہت مخدوش تھے اور حضرت محتمم صاحب قبلہ پر بڑا ظلم ہوا. تب آپ نے کیسے مظالم کا سامنا کیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے پوچھی ہے. بہرحال یہ سچی بات ہے کہ میری فراغت 1999 میں ہوئی، اور اسی درمیان میں جو ہے یہاں پہ اڑیسہ کے اندر جو ہے سپر سائیکلون ہوا تھا، اور سپر سائیکلون کی وجہ سے جو ہے ہر ایک ادارہ متاثر تھا، اور یہ ادارہ بھی متاثر تھا. اور اس وقت ایک غلط افواہ کے ذریعہ اس ادارے کو بے انتہا بدنام کیا گیا. اور میرے والد صاحب محترم، جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کی ساری قیمتی اوقات
دین کی خدمت میں، ادارے کی خدمت میں، مسجد کی امامت میں گزاری تھی، ان پر شب و شتم کیا گیا، انہیں برے طریقے سے مخدوش کیا گیا اور انہیں بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی. اور ایسے ماحول میں اگر میرے والد صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا جو خود غرض یا کسی مقصد کو لے کر ادارے میں ہوتا تو وہ ضرور ادارہ چھوڑ کر چلا جاتا. لیکن الحمدللہ میرے والد صاحب للہیت کے پیکر، خلوص و للہیت ان کا اپنا عنصر، اور انہوں نے اس ادارے کو توکلاً علی اللہ جو ابتدا سے آج تک قائم ہے، اسی توکلاً علی اللہ کے بلبوتے پر اس وقت بھی انہوں نے یہی مجھ سے کہا تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، جو شعر آپ نے سنا ہوگا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو پھر وہی ہوا. دنیا نے دیکھا کہ ان بدنام کرنے والے، ظلم کرنے والے حضرات نے آخرکار اپنے شب و شتم کو اور اپنے ظلم و زیادتی کو ختم کیا، اور پھر حضرت محتم صاحب یعنی میرے والد محترم کی خدمت میں آ کر معافی تلافی کی. اور الحمدللہ اس وقت ماحول بہت بگڑا ہوا تھا، اور اتنا بگڑا ہوا تھا کہ چاروں طرف سے ہمیں ستایا جا رہا تھا، ہمارے ادارے کو بدنام کیا جا رہا تھا، طرح طرح کی افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا تھا. ایسے ماحول میں الحمدللہ اللہ نے ہمارے اوپر صاحبانی فرمائی، اور ہم اس ادارے کو اس وقت میں اچھے انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کی، اور آج تک اسی انداز میں لے کر چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب ترقی نصیب فرمائے، ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. طالب علمی کے زمانے میں وہ ترانہ سنا تھا جو آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ترتیب دی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین بھی اس ترانے سے محظوظ ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ تحت لفظ چند اشعار پیش کر دیں تو باعث مسرت ہوگی. ماشاءاللہ. دیکھیے، میرے طالب علم کے زمانے میں تقریباً 1997 میں، اور مجھے شوق ہوا کہ تقریباً بڑے اداروں میں ادارے کا ایک ترانہ مرتب ہوتا ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند کا ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ، اسی طریقے کا ہر ادارے کا کچھ ترانہ مرتب ہوتا ہے. تو میرا شوق تھا کہ میں بھی ایک ترانہ لکھوں، اس لیے کہ مجھے شاعرانہ ذوق میرے اندر اللہ نے دیا تھا. تو میں نے کوشش کیا تو ترانہ مرتب ہو گیا. اب یہ ہے کہ میرے زمانے طالب علم کی کوشش تھی، اب اس میں کوئی شاعر کوئی نقص نکالے تو یہ میری کمی سمجھی جائے گی، لیکن زمانے طالب علم میں نے مرتب کیا تھا. چند اشعار پیش کریں. اچھا، چند اشعار تو دیکھیے، اس کے اشعار تو تقریباً مرتب شدہ ہیں، لیکن اس وقت مجھے چند اشعار یاد ہیں جو میں آپ کے دلجوئی کے لیے پیش بھی کر دیتا ہوں. آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیتا ہوں. اس کا پہلا شعر تھا کہ یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے. یہ علم و عمل کا تاج محل ہم طالب دین کا مسکن ہے، ہر دور میں ہنستا اور کھلتا یہ علم قرآن کا گلشن ہے. اور اسی طرح اس میں لکھا تھا یہ گاہ حدیث و قرآن ہے، یہ مدرسہ فضل رحمہ ہے. یہ گاہ حدیث و قرآن ہے، یہ مدرسہ فضل رحمہ ہے، لوگوں کی نظر کا ستارہ ہے، ہر دل کی دوا کا ساما ہے علم و عمل کا کان یہاں، فرمان نبی کی آن یہاں. یہ شعر بڑا مجھے پسند تھا. ہے علم و عمل کا کان یہاں، فرمان نبی کی آن یہاں، اصحاب نبی کے جلووں کی دیکھو گے نئی تم شان یہاں. اصحاب نبی کے جلووں کی دیکھو گے نئی تم شان یہاں. اور پھر جو بانی تھے ان کے سلسلے میں کہ جب شیر اڑیسہ نے دیکھا بدعت سے بھرا ہے سب خانہ، جب شیر اڑیسہ نے دیکھا بدعت سے بھرا ہے سب خانہ، 1956 عیسوی میں تعمیر کیا یہ میخانہ. 1956 عیسوی میں تعمیر کیا یہ میخانہ. مولانا عبدالستار یہاں اس گلشن دی کے ہے نگراں، مولانا عبدالستار یہاں اس گلشن دی کے ہے نگراں، کرتا ہے چمن کا ہر ذرہ موصوف کی
खिदमत साहब बयां, करता है चमन का हर जर्रा मौसूफ की खिदमत साहब बयां। और एक शेर उसमें ये था कि हाँ कितने रफ़ीक इस गुलशन के, हाँ कितने रफ़ीक की मेहनत से इस गुलशन में आई रानाई, इस बज़्म नबी में आकर के बिदअत की हुई है रुसवाई, इस बज़्म नबी में आकर के बिदअत की हुई है रुसवाई। ये शेर था। और आखिर में मेरे नाम का एक तखल्लुस वाला शेर था कि आखिर में दुआ है जुल्लू की शादाब रहे ये बाग खुदा, आखिर में दुआ है जुल्लू की शादाब रहे ये बाग। आखिरी शेर ये है कि आखिर में दुआ है जुल्लू की कायम ये रहे ता रोज़े जज़ा, आखिर में दुआ है जुल्लू की कायम ये रहे ता रोज़े जज़ा, अनवार हरम की बारिश से शादाब रहे ये बाग हुदा, अनवार हरम की बारिश से शादाब रहे ये बाग हुदा। बस यही तराना था जो उस वक्त मैंने लिखी। इसके दरमियान में चंद अशार और भी हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं है। जिस तरह इस तराने में जिक्र किया गया है कि जब शेर उड़ीसा ने देखा बिदअत से भरा है सब खाना, सन 1956 ईस्वी में तामीर किया ये मैखाना, तो इसमें उस वक्त जबकि सारे इलाके में बिदअत और खुराफात आम थे, तो उस वक्त उनके ख़ात्मे में इस इदारे ने क्या किरदार अंजाम दिया, और इस वक्त जो है लोग उसको फरामोश किए हुए हैं, इसका नामो निशान तक नहीं है। जब लोगों को कहा जाए तो लोग पहचानते भी नहीं हैं कि ये इस नाम का भी कोई इदारा है। तो आप इस बारे में वाज़ेह रोशनी डालें ताकि लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह तबारक तआला ने इस इदारे से, इस इदारे में काम करने वालों से उस वक्त में जबकि सारे हालात बिल्कुल मुखालिफ थे, साजगार नहीं थे, मुखालिफ थे, अल्लाह ने कैसी खिदमत की। जी मौलाना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हकीकतन आज दुनिया इस इदारे से और इसकी खिदमत से बेखबर है। वाक़ईतन इस इदारे के कायम होने से पहले और मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातहुम के इस इदारे की ज़िम्मेदारी संभालने से पहले ये 14 महल्ला पूरे पदमपुर का बिदात में घिरा हुआ था। कौन सी ऐसी बिदात बची नहीं थी जो यहाँ के आवाम में राइज न थी, लेकिन ये इस इदारे का सदका है और मेरे वालिद साहब की कुर्बानी है कि आज इस 14 महल्ले के अंदर कोई दाढ़ी और टोपी वाला नज़र आता है या अपने आप को देवबंदियत कहकर, देवबंदी कहकर जो है पहचान कराता है। और इस पूरे 14 महल्ले के अंदर कोई भद्द बशर ऐसा नहीं होगा जो आज से 20 साल पहले का होगा और वो इस इदारे से फैज़याब ना हुआ होगा, बल्कि कमोबेश अक्सर व बेशतर पूरे 14 महल्ले के अफराद इस इदारे के मुतालिब रहे हैं और मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। ले ये और बात है कि बादल ने इस तरह से इस खुले आसमान को ढांप लिया है कि आसमान के सितारे नज़र नहीं आए, ये अलग बात है। अब बादल छट रहा है, इंशाअल्लाह जब बादल पूरे तरीके से छट जाएगा तो आसमान खुला हुआ सामने आएगा, हकीकत सामने आएगी और वाज़ेह खिदमत सामने आएंगे। ये और बात है कि मेरे वालिद साहब शो माइंड के नहीं थे, न उनको दिखावा करने का शौक़ था, न उनको किसी के सामने जाने का कोई या किसी के सामने तारुफ कराने का कोई तमन्ना थी। इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि उनका हमेशा ये ख्वाहिश रहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ। अगर मेरा अल्लाह खुश है और इस इदारे से अगर एक तालिब इल्म अल्लाह वाला बन के निकलता है तो मेरी पूरी ज़िंदगी की खिदमत मेरे लिए मसाले राह और मेरे लिए जन्नत और मेरे लिए निजात का ज़रिया बन सकता है। और अगर इस इदारे से हज़ारों लाखों तालिब इल्म निकलें लेकिन कोई अल्लाह वाला ना निकले, कोई रज़ा इलाही वाला ना निकले, तो फिर उनको ऐसे तालिब इल्म के निकलने से, ऐसा शो करने से, इस तरह की दुनिया के अंदर मशहूर होने से ज़रा बराबर उनको कोई खुशी नहीं थी। यही वजह है कि लोग आज इसको कम पहचान पाए। फिलवक्त मदरसे के हालात कैसे हैं और आवाम की तवज्जो का क्या हाल है? माशाअल्लाह, जो पहले तज़किरा हुआ कि 2001 में जो बादल आए थे, छा गए थे और पूरे तरीके से इदारा उसका शिकार रहा, और जब फिर कुरान की आयत है वजाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक जो है गालिब होकर ही रहेगा। और जब बादल छट रहा है, हक गालिब होता जा रहा है और मुकम्मल तरीके से लोगों की समझ में बात आ गई कि हक किस तरफ है और हज़रत की ज़ात
कैसी है, क्या है, लिल्लाहियत पर कौन है, जब ये बात दुनिया के सामने आई तो वो हजरात जो कल तक इस इदारे को बुरा भला बोलते थे, इस इदारे के बारे में गलत अफवाह कर रहे थे, इस इदारे की इमदाद और नुसरत को रोक रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद यहाँ आ रहे हैं और मुखालिफिन के घरों से लोग आकर इमदाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुखालिफिन के घरों से लोग आकर इमदाद कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल हमारे धान के चंदे को बंद कर दिया था, मुट्ठी के चंदे को बंद कर दिया था और इसी तरीके से दूसरे मौके पर जलसे जुलूस और चर्म कुर्बानी के और ज़कात फितरात के मौके पर इमदाद करना बंद कर दिया था और लोगों को उकसाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को उकसाकर इस इदारे की इमदाद करवा रहे हैं। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं, हम जानते हैं फसयकफीकहुमुल्लाह, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है। क्या आपका इदारा इन 2 सालों से आने वाले कोरोना वायरस और उसके नतीजे में होने वाले लॉकडाउन से मुतासिर हुआ है? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जो आपको करना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि आप माशाल्लाह आलिम दीन है, आपको खबर भी है दीनी इदारों का क्या हाल हुआ है। दारुल देवबंद आलमी इदारा, हमारा मादरी इल्मी दारुल देवबंद आलमी इदारा, वो जब मुतासिर हुआ तो इस इदारे की क्या हकीकत है, मुतासिर होना यकीनी है। और जिसके मुआविनीन दारुल देवबंद के मुआविनीन जो है पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और उनके पास इमदाद करने के दूसरे रास्ते बहुत सारे हैं, फिर भी दारुल देवबंद मुतासिर हुआ और तकरीबन पूरी दुनिया के इदारे मुतासिर हुए, बिलखुसूस हिंदुस्तान के इदारे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और बिलखुसूस उड़ीसा के इदारे उससे ज़्यादा मुतासिर हुए। तो ये इदारा भी मुतासिर होना यकीनी है। लेकिन अभी मैं यही कहूँगा आपसे, अभी मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न इस इदारे से किसी तरीके की कोई कमी वाक़ई हुई, न इस इदारे के तालीम में कोई हरज हुआ। तालीम अगरचे बज़ाहिर मदरसे के गेट पर आपने देखा होगा ताला लगा हुआ है, मदरसा बज़ाहिर बंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ताहयात जारी रखने का इरादा है। हज़रत, हमारे ज़माने में यहाँ एक अंजुमन बज़्म शब्बीर के नाम से कायम थी, क्या अब भी वो जारी है? जी माशाल्लाह, वो एक मेरा ख्वाब था, वो एक मेरा ख्वाब था जब मैं तालिब इल्म था। आपसे आज बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि यही वो इदारा है मदरसा बदरुल उलूम पदमपुर, जिसके स्टेज ने आज मेरे अंदर हिम्मत और हौसला दिया और मुझे कुछ कहने और सुनने की सलाहियत मेरे अंदर पैदा की। और जो दहशत या डर जो स्टेज का होता है उसको अगर किसी ने ख़त्म किया तो उसका सेहरा मैं अपने वालिद साहब के और अपने मामा मोहतरम के सर देता हूँ। उनकी अनथक कोशिश और मेहनत से मैं इस इदारे के सालाना जलसे के स्टेज पर तकरीर और मुकालमा और इसी तरह दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहा और इसी हौसला और हिम्मत को लेते हुए मैं मादर इल्म दारुल देवबंद पहुंचा और वहां पर वहां के सालाना प्रोग्राम में और वहां के बड़े बड़े अंजुमनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अनाउंसरी भी की और हिस्सा भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ का हकदार भी बना। तो फिर मैं वहां से ये मेरे जहन में बात थी कि मैं जब जाऊं इदारे में तो यहाँ पे भी कोई ऐसा अंजुमन तैयार करूं जिसके ज़रिए से हमारे तलबा के अंदर यही हौसला यही हिम्मत पैदा हो। जब मैं यहाँ आया 2001 में और फिर 2001 में तो हालात साजगार नहीं थे, गालिबन 2003 या 4 के दरमियान में जब इस इदारे में फिर से एक अंजुमन बज़्म शब्बीर के नाम से हमने कायम किया और उस अंजुमन के तहत हमारे तलबा को हमने हर जुमेरात में बेइंतहा मेहनत करवाना शुरू किया। तलबा की तकरीरी और तहरीरी सलाहियत को उजागर करने की हमने भरपूर कोशिश की और उसमें हम कामयाब भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह साल के आखिर में उसका एक इख्तितामी प्रोग्राम भी करता हूँ और उसमें दूसरे अहबाब को बाहर से मेहमान के तौर पर शरीक, जिसमें हमारे शायर इस्लाम बिलखुसूस शायर इस्लाम जनाब अब्दुल मतीन जामी साहब, शायर इस्लाम जनाब माशूक खावर साहब सुंगड़ा, इसी तरह के दूसरे हजरात जो बड़े ओहदों पर हैं उनको हम बहैसियत मेहमान के मदऊ करते हैं और उनके सामने प्रोग्राम तलबा पेश करते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिर में मेहमान खुसूसी अपने खिताब से नवाजते हैं। और हर आने वाले मेहमान ने इस अंजुमन को सराहा है, इसके प्रोग्राम की तारीफ की है और इसमें तलबा की हिम्मत और हौसला को बहुत उजागर किया है।
इसलिए वो अंजुमन आज भी कायम है और आज भी जारी है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ता क़यामत वो अंजुमन इस इदारे के अंदर कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और एक सवाल, इस वक्त पूरी दुनिया असी तालीम की तरफ राग़िब है, इसी वजह से अपनी दरसगाहों में भी कुछ असी तालीम का निज़ाम कायम किया जाता है, क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ इंतज़ाम है? जी, पहले तो ऐसा इंतज़ाम कुछ नहीं था, सिर्फ दीनी तालीम का सिलसिला था, दर्ज हिफ्ज़ की तालीम थी, अरबी फ़ारसी की तालीम थी, और ज़्यादा से ज़्यादा दीनियात की तालीम थी। हमने तालीम पर हमेशा ज़ोर दिया है, लेकिन हालात का तकाज़ा इस बात की तरफ राग़िब करता है कि हम भी यहाँ पे कुछ असली तालीम दिलवाएं, ताकि ये तलबा जो यहाँ से फारिग होकर बाहर जाएं, दुनिया में जाएं, इन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत न पड़े। इस सिलसिले में मैं अपना एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। मैं तो स्कूल से पढ़कर गया था देवबंद। उस ज़माने में टेलीफोन और मोबाइल वगैरह का तो सिलसिला नहीं था, हाँ अलबत्ता लेटर और ख़त का सिलसिला था। तो मेरे पास तकरीबन मेरे रूम में बहुत सारे तलबा आते थे जो एड्रेस लिखवाना चाहते थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश मालूम था, मैं एड्रेस लिखता था। जब मैं रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन के लिए पहुंचता, रिजर्वेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए बहुत सारे तलबा दौड़ते हुए मेरे पास आते थे। मुझे उस वक्त में एक बात का एहसास होता था कि हमारे अंदर कितनी कमी है कि हम ट्रेन कहाँ जाएगी हमें पता नहीं चलता, हम देख के जान नहीं पाते उसके बोर्ड को, या हम अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। ये हमारी कमी, हम इस कमी को दूसरों के पास इस ज़रूरत को दूसरों के पास लेकर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरे दिल में बात थी कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ पे कम से कम इतनी दीनी तालीम के साथ इतनी दुनियावी तालीम भी दी जाए, ताकि तालिब इल्म अपनी ज़रूरत खुद पूरा कर सके, दूसरे का मोहताज न बने। इसी सिलसिले से जब मैं इस इदारे में आया, मेरे वालिद साहब से मशवरा किया, उनके हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह एक मास्टर का हमने इंतखाब किया। वो मास्टर साहब जो है हिसाब और जोग्राफिया और इसी तरह हिंदी और ज़रूरतन इंग्लिश और मैथ वगैरह की तालीम दे देते हैं, ताकि उससे जो है तलबा अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकें। पूरी ज़रूरत तो नहीं, बल्कि जो आम ज़रूरतें हैं वो ज़रूरत पूरी हो जाएं। इसके लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है, और आइंदा कंप्यूटर के सिलसिले में भी हमारी सोच है। आप दुआ करें और किसी साहिब खैर को अल्लाह ताला इस तरफ तवज्जो उसके इस तरफ मबजूल करवा दे, तो अगर कंप्यूटर का इंतज़ाम हो गया तो इंशाल्लाह कंप्यूटर की तालीम भी इस इदारे में जारी करने का इरादा है। हज़रत मोहतमी साहब की तबीयत फ़िल वक्त कैसी है? क्या आपका मदरसे में आमद और रफ्त जारी है? देखिए, हज़रत मोहतमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ठीक ठाक हैं बिल्कुल। ये और बात है कि कई अमराज के शिकार हैं और बहुत सारे अमराज उनके साथ लायक हैं। बिलखुसूस 2 साल पहले से उनको ये मोतियाबिन की शिकायत की वजह से आँख की बीनाई मुतासिर हुई थी। अब अभी हाल में हज़रत का आँख का ऑपरेशन किया गया। आँख के ऑपरेशन के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बिल्कुल ठीक सलामत हैं और कुरान की तिलावत में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, दुआ व अज़कार में रहते हैं। और अभी तो लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिरी तालीम मदरसे का बंद रहा, इसलिए मदरसा कभी कभार सिर्फ ज़ियारत के लिए हाज़िरी होती है, वरना जब मदरसा जारी था तो हज़रत मोहतमी साहब हमेशा हर दिन सुबह 7 बजे से तशरीफ़ लाते और पूरे वक्त मुकम्मल करके 10 बजे मदरसे से फिर अपने मकान में तशरीफ़ ले जाते। ये हज़रत का दस्तूर रहा, और जितना वक्त हज़रत ने अटेंडेंस में सिग्नेचर किया है, टाइम डाला है जितना, उतना टाइम मदरसे में गुजारते, ताकि मदरसे के इस अटेंडेंस में किसी तरीके का धोखा ना हो। ये हज़रत का मेयार था और ये उनकी सोच थी, और उस पर वो आखिर तक कायम रहे। मदरसे में मुकीम तलबा के लिए मतबख में ताम का कैसा इंतज़ाम है? देखिए, बहुत ज़माने से मदरसे में मतबख का इंतज़ाम किया गया है। अगरचे बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाया कि इस मदरसे में मतबख नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा कि मतबख का सारा इंतज़ाम है। एक तबाख भी, बावर्ची भी रखा हुआ है। मदरसे में तलबा को 3 वक्त खाना देता है, और अच्छे से अच्छा मियारी खाने का हम इंतज़ाम करते हैं। और मेरी सोच ये है कि जो मैं खाता हूँ हमारे तलबा वो खाएं। आप इस कैमरे को मेरे सामने से उठाकर तलबा के पास ले जाएं और उनसे इनफरादी तौर पर तफ्तीश करें
कि तलबा को खाने में क्या दिया जाता है, तलबा कैसे खाते हैं, तलबा के साथ क्या मामला किया जाता है। मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि सारे के सारे तलबा इस बात में जवाब देंगे, खैर में जवाब देंगे, किसी की ज़बान से शर नहीं निकलेगी, कोई हमारी गलत बात हमारी तरफ मंसूब नहीं करेगा। इसलिए कि हमने इनको इंदल्लाह जो है अल्लाह के पास अजर का जरिया हमने इसको समझा है कि जो हम इनकी खिदमत करेंगे अल्लाह इसका बेहतरीन अजर हमें देंगे। और जो काम हम कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए और अपने आखिरत के लिए कर रहे हैं, इसमें किसी तरीके कोई ख़यानत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग ताउन करते जा रहे हैं, हर तरह के ताउन होते हैं, चावल भी लोग देते हैं, आटा भी लोग देते हैं, इसी तरीके से मसालेजात भी लोग भेज देते हैं, अंडे भी भेजते हैं, गोश्त भेजते हैं, और अकीका वगैरह के वक्त में जो है गोश्त बहुत सारे मदरसे में आ जाते हैं। तो इस तरह के जो है चीज़ों से मदरसे के और मकबक की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और बेहतरीन से बेहतरीन खाना दिया जाता है और तलबा माशाल्लाह बहुत ही खुश हैं। और आज से पहले मतलब 2014-15 से 2013 से पहले जो मदरसे में मकबक का इंतज़ाम नहीं था, उस वक्त माहौल ये था कि लोग अपने अपने घरों में तलबा को रख कर खाना खिलाते थे, तो बड़ी ख्वाहिश बड़ी खुशी से खिलाते थे। लेकिन हमें दुश्वारी हुई तलबा के खाना लाने में और बारिश के मौसम की वजह से, इसलिए हमने 2013 के नवंबर से मदरसे में मुकम्मल मकबक का नज़्म शुरू किया है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी उम्मीद रखते हैं जारी रहेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके इदारे का जलसा पूरे कटक शहर में मशहूर है, पूरे कटक ज़िला में मशहूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके मुकालमे पर उंगली उठाते हैं, एतराज़ करते हैं, तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? हालांकि मैंने भी दारुल उलूम के अंदर देखा है कि दारुल उलूम के हज़रात मुहद्दिसीन इकराम वहाँ तशरीफ़ फरमा है दारुल हदीस के अंदर, और वहाँ पर इस तरह के मुकालमे में कव्वाली कर रहा है, कोई कभी गाना गा रहा है, मैंने भी देखा है हालांकि। लेकिन आप हमारे सामीन को इसके बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, किसी की ज़बान को बंद करना तो नामुमकिन है, और कुरान की एक आयत है ना, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए ये दुआ कहलवाया था कि नबी आप दुआ करें कि उन हसद करने वालों के हसद से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो ये हसद है जो कर नहीं पाते हैं लोग, तो हमारे बच्चे जब उसको करते हैं तो लाज़मी बात है उन्हें तकलीफ होती है। ये आपने सही सुना और यकीनन ये बात सही है कि हमारे इदारे का जलसा बेइंतहा मकबूल है, ये अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट या कमाल नहीं। ये और बात है, मैं मेहनत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तलबा भी मेहनत करते हैं, असातिज़ा भी उनके पीछे मेहनत करते हैं, जिसके बाद जो है ये तलबा स्टेज पर जाकर अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं। सिर्फ तलबा के प्रोग्राम की वजह से जलसा मकबूल नहीं है, बल्कि हमने हर साल कोशिश की कि अच्छे अच्छे चुनिदा शोरा और चुनिदा मुकर्रिरीन को हम दावत देकर बुलाएं, इसलिए कि आवाम चंदा देती है अच्छे से अच्छी बात सुनने के लिए, अच्छे उलमा की ज़ियारत के लिए। तो हम जो है ये कोशिश करते हैं, इस कोशिश में हम बेइंतहा कामयाब हैं, और जिसकी खबर आपके कानून भी पहुंचती है। लोग इस लॉकडाउन की वजह से जलसा बंद है, कई लोग सवाल करते हैं कि भाई जलसा क्यों नहीं कर रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म होगा, इदारा मुकम्मल बाज़ाब्ता खुल जाएगा, फिर इंशाल्लाह जलसा होगा, और जलसा पूरे आबोताब के साथ होगा। जो अपनी उसकी पुरानी तारीख है उसी तारीख के मुताबिक जलसा कामयाब होगा इंशाल्लाह। अब रहा हसद करने वाले कहते हैं कि ये ड्रामा हो रहा है, तो लेकिन आपने तो कहा, आप कह दिया, मैं क्या कहूँगा कि दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस के अंदर हजरात मुहद्दिसीन के मौजूदगी में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। हमने तो लिबास भी चेंज नहीं करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा अपने लिबास, मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लिबास पहनकर आया, कोई डॉक्टर है तो पैंट शर्ट पहनकर आया, लेकिन हमारे तलबा जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं वो अब कुछ भी है, लेकिन वो अपना इस्लामी शियार, इस्लामी लिबास और सर पे टोपी के साथ स्टेज पर आते हैं। अगरचे बात दूसरे की करते हैं, लेकिन अपनी शान और शौकत बरकरार रखते हैं। लेकिन इस पर भी अगर किसी को तकलीफ हो तो अमीन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह ताला ऐसे हसद करने वालों से बचाए, और क्या कर सकते हैं। अगर कोई इदारे की इमदाद करना चाहे तो उसकी क्या शक्ल है? देखिए, इदारा आपका है, इदारा पूरे मुसलमानों का है। आज तक इदारा आप हजरात जैसे लोगों के इमदाद और नुसरत पर जारी व सारी है, अल्लाह चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जरिया है वो अवाम की इमदाद है, अवामी इमदाद से इदारा चल रहा है। हमारा किसी सरकारी, किसी दफातर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने किसी सरकारी ऐड को इस्तेमाल नहीं किया अब तक का, ना हमें कोई ऐड मिला नहीं है।
जहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी है, जो देख रहे हैं आप, ये सारा अवामी इमदाद और नुसरत का नतीजा है और इसी इमदाद और नुसरत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इमदाद की शक्ल ये है कि कोई चावल दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई मसाले जात दे देता है, या कोई गोश्त भेज देता है, या कोई मुर्गा दे देता है, या इसी तरीके कोई रकम भेज देता है। अब रकम भेजने की सूरत जो है बजाते खुद हैंड टू हैंड, हाथ में दे देता है तो वो भी ठीक है, या फिर अकाउंट के जरिए ट्रांसफर भी कर सकता है, वो भी सही है, या फिर किसी के और के जरिए भेज सकता है, वो भी सही है। और जो भी भेजे वो अपना पुख्ता रसीद हासिल कर दे, ये हमारी भी ख्वाहिश है। और हम कोशिश करते हैं कि जो इमदाद हमारे पास आए हम उसको हूबहू मदरसे में लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हिसाब व किताब 2001 से लेकर अब तक, जब से मैं इस इदारे में आया, A to Z बिल्कुल बासफा तैयार है। जो साहब जिस वक्त जिस पल चाहें वो हमारे हिसाब की चेकिंग कर सकते हैं। इस बात पर मुझे फख्र है। आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है कि आने वाले वक्त में, जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर वगैरह का की तालीम का इरादा है जी, इस तरह का दूसरा और क्या प्लान है आपका? देखिए, अव्वल तो पहले तामीरात का प्लान है, तामीरात का मंसूबा है पहले कि हम उस तरफ के जो सीट के मकान हैं पुराने हैं, बहुत मखदूश हो गए, अब उसको ढाकर हम जो है सिरे से अच्छा सा एक बिल्डिंग बनाएं और फिर उसके बाद तलबा में इजाफ़ा करें। और तलबा में इजाफ़ा हो ना हो, तालीम में इजाफ़ा होना ज़रूरी है, इसलिए कि इदारा नाम है तालीम का, इदारा नाम नहीं है कि तादाद का। तादाद 5 ही हो लेकिन तालीम उम्दा हो कि वो 5 ही चमक कर निकले, ये मेरी ख्वाहिश है। इसलिए मैं तालीम को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता हूँ। उस सिलसिले में कंप्यूटर भी एक तालीम का ज़रिया है और वो भी इस वक्त ज़रूरत है दुनिया में, तो हम उसकी तरफ भी सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर कहीं किसी मुखय्यर साहिब खैर ने अगर इमदाद के तौर पर कंप्यूटर हमें अता कर दिया या फिर हमारे हाथ में इतनी वसात हुई कि हम कंप्यूटर ख़रीद सकें, तो यकीनन कंप्यूटर की तालीम हम दिलवाएंगे। और आगे जो हम तामीरी सिलसिले में सोच रहे हैं, आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है और आपके इस चैनल के ज़रिया हम जो है आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। बहुत पुराना इदारा, लबे रोड है, कभी भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर ठहर सकते हैं, देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं और इसकी इमदाद व नुसरत फरमाएं, भरपूर इसकी इमदाद व नुसरत फरमाएं, ताकि हम अपने प्लान में कामयाब हों और जो हमारा इदारा है तालीम को उरूज देना, उसमें हम आसानी के साथ, इफ़्फ़त के साथ, सुकून के साथ उरूज दे सकें, यही हमारी ख्वाहिश है। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। लिहाजा इस मदरसे के मोहसिनीन जो उस दौर में भी आपका दामे दीरमे कदम सुखने मदद करते रहे, अगर आप चाहें तो उनका नाम ले सकते हैं। वैसे तो बहुत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि 2-4 ही होंगे, बहुत होंगे, लेकिन जो ख़ास हैं आप अगर उनका नाम लेना चाहें। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये इदारा लोगों के इमदाद से कायम है, तो जो मेरी तो ख्वाहिश ये होती है या मेरी राय ये है कि अशिया के शक्ल में, रकम के शक्ल में कोई कुछ भी न दे, सिर्फ अगर यही कहता है कि ये इदारा है रसूलुल्लाह का घर है, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। बहुत सारे मोहसिनीन हैं, बहुत सारे मुआविनीन हैं, किसका नाम लो किसका नाम छूट जाए और लोग कहें कि ये जानबूझ के उनका नाम लिया गया हमारा, इसलिए इस सवाल से मैं कतराता हूँ। आप इस सवाल को मख्फी रखें। ये है कि बस जिन्होंने हमारे साथ एहसान किया है, जिन्होंने मदद किया है, अगर वो दुनिया में है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें शाद व आबाद रखे, अल्लाह ताला उनके खुशी और खुर्रम उन्हें फरमाए, अल्लाह ताला उनके घरों में खुशियाँ अता फरमाए और अगर वो इंतकाल कर गए उनको भी और उनके दिगर तमाम मरहूमीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला अभी हाल में बिलखुसूस हमारे एक बहुत बड़े मोहसिन करम फरमा मदरसे से बेइंतहा मोहब्बत रखने वाले नईम अहमद साहब, पान बीड़ी कंपनी के मालिक, इंतकाल किए। बड़े मोहसिन, बड़े मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस इदारे के अज़ अव्वल पहले दिन से लेकर आज तक जिन्होंने जिस तरह की भी मदद की है वो सब हमारे मोहसिन हैं, वो सब हमारे मुआविन हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह अगर हमारे मोहसिनीन में से, मुआविनीन में से जो इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने लोग जिंदा हैं
अल्लाह उन्हें शाद व आबाद ज़िंदगी नसीब फरमाए। क्या आपका हमारे चैनल के लिए इतना वक्त देना, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल को भी तरक्की अता फरमाए, और हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। देखिए, ये तो आपका मदरसे के साथ देरीना मोहब्बत है कि आप कम अज़ कम इस इदारे में आए, अपने चैनल के ज़रिए से इस इदारे को दुनिया के सामने रोशनास कराना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मैं खुद आपका मशकूर हूँ, लेकिन आप तो हमारे तालिब इल्म रह चुके हैं, इसलिए आपका ज़ाती और हक भी बनता था। आपने बहरहाल फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका जज़ा दे, और आपके ज़रिए से इस इदारे को पूरी दुनिया के अंदर लोगों में तारुफ का ज़रिया बनाए आपको और आपके चैनल को। और आपके चैनल के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दीन की खिदमत इस चैनल के ज़रिया खूब करने की तौफीक अता फरमाए आपको, और आपके इस चैनल को अल्लाह मकबूल फरमाए। असर के वक्त तलबा खेलते हुए इस मैदान में देख सकते हैं कि जिस तरह तालीमी वक्त में इस लॉकडाउन में मास्क वगैरह की पाबंदी की जाती है, इसी तरह इस इदारे में खेलने के वक्त भी मास्क को कंपलसरी किया गया है, ताकि कानून की किसी तरह की भी कोई खिलाफ वर्जी ना हो सके या किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। तलबा बड़ी खुशी के साथ आपस में खेलते हुए एक भाई भाई की तरह, जिस तरह अपने घर में अपने साथ खेलते हैं, इसी तरह तलबा यहाँ पर भी आपस में मिलजुल कर रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इसी तरह फुटबॉल भी खेलते हैं। और स्टेज ये है जिसमें छोटे तलबा भी खेल रहे हैं। इसमें जो है जलसा सालाना का इनेकाद किया जाता है, और उसमें जो नेम प्लेट लगा हुआ है उसको भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जलसे का ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, जिसको आप देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल में। अब्दुल मजीद मरहूम व मोहम्मद जहांगीर मरहूम 2001 में इसकी तामीर सानी हुई है, और ये हबीब साहब हैं, एक केंद्रापड़ा के रहने वाले, उनके तरफ से इसकी तामीर की गई है। स्टेज को पुख्ता किया गया है, वरना तो पुख्ता नहीं था, स्टेज तो पहले भी था, लेकिन इस तरह से पुख्ता नहीं था। एक अजीमुशान जलसा इनेकाद किया जाता है पदमपुर इलाके में। जब भी बात की जाए जलसे की या कटक में अगर जलसे की बात की जाए तो सबसे पहले सर फहरिस्त इस पदमपुर का जलसा जो है याद किया जाता है। तलबा खेल रहे हैं यहाँ पर आपस में, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तलबा को कामयाब व कामरान करे, दोनों आलम में कामयाबी नसीब फरमाए। इस इदारे के एक जलसे का हल्का सा प्रोग्राम यूट्यूब के चैनल में भी आपको दस्तयाब हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। जब शेर उड़ीसा ने देखा बिदअत से भरा है सब खाना, जब शेर उड़ीसा ने देखा बिदअत से भरा है सब खाना, 1956 ईस्वी में तामीर किया ये मैखाना, 1956 ईस्वी में तामीर किया ये मैखाना। ये दफ्तर एहतमाम के अंदरूनी हिस्सा है, आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो तलबा मुझे देखकर मसरूर हुए और दफ्तर एहतमाम के अंदर आ गए। उनसे कुछ देर बात हुई इस इदारे के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, कैसा क्या निज़ाम है, तालीमात का क्या इंतज़ाम है और मतबख का क्या इंतज़ाम है, उनसे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि जिस तरह हमारे ज़माने में यहाँ पर तालीम का सिलसिला जारी था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत तरक्की के और गामसन है।
میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اس ادارے کی جس طرح بھی چاہے ہو سکے، چاہے آن لائن ہو یا پھر لا کر پہنچانا چاہیں تو مدرسے کا جائزہ لیں، خود بھی اطمینان ہو تو یہاں پہ مدرسے کی امداد کر کے جائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، دونوں عالم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ اب میں آپ حضرات کو اس مدرسے کے جلسے کی ہلکی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں، اس کے بعد اپنے ویڈیو کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا بتاؤ بیٹا، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے جو اب بہت امیر کبھی انسان بن گیا ہے، اس کو میں نے بڑے پیار سے پالا پوسا، اس کے سارے نقلے اٹھائے، اپنی ساری پونجی لگا کر پڑھایا لکھایا، دنیا جہاں کا سکھ دیا، لیکن جب آج پیسے والا ہو گیا تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، اور آج تو اس نے حد بھی کر دی، مجھے برا بلا کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ دوسرا لڑکا جو حافظ ہے تم جانے میں مدینہ، تم جانے میں مدینہ، تم جانے میں مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا اب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا اب گینا، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، رہ جاؤں میں کہیں نہ، رہ جاؤں میں کہیں نہ۔ رسول پاک، رسول پاک کیسے اس کلام کا آخری حاضر کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ یہ پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اچھا ادھر تھوڑا سا ادھر گھما دو۔ ٹھیک اب آخری بات اس کلام کا حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہم سب، اور یہاں پر علماء کرام حفاظ کرام کی مدرسے کے صحن میں یہ پروگرام ہو رہا۔ قرآن مقدس کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر سچا ہو تو آپ کی دعائیں ملنے چاہیے۔ مولانا ذوالفقار صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، وہ پیسہ میرا جا رہا ہے، ہاں حاضر کرتا ہوں، یہاں سے ملاحظہ کریں۔ رسول پاک سے جائے کرے سبائے کہہ دینا، کہہ دینا میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے، اور اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے، دیکھیں گا اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے، کہ نادا ہے نبی کا جوہر، نادا ہے نبی کا جوہر، فرمان نہیں پڑھتے، نادا ہے نبی کا جوہر، فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے رہے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نادا ہے نبی کا جوہر، فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے رہے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، سرکار کے آنکھوں کے، سرکار کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے نمازوں میں، سرکار کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے نمازوں میں، کیا آپ یہ سیرت کا عنوان